Okay, good evening, all of you, once again. I hope all of you are doing great. So, today we'll continue our discussion with the next chapter. Till now, we did discuss in detail about corporate level strategies and business level strategies. From today, we'll discuss on functional level strategies. And I think by that time, हमारे जो तीनों important different categories and levels of strategies थे वो खत्म हो जाएंगे. Again, functional level strategies be equally important the exam point of view से. Like it also has a equal relevance. Like जितना relevance हमारे corporate और business level strategies का था. Talking about functional level strategies, guys, यहाँ पर ना explicitly सारे strategies को discuss नहीं किया detail में, but जो भी important या major आप बोल सकते हो functional level strategies जो relevant रहते हैं उनको जरूर discuss किया. Let's say for example, in this functional level strategies we'll discuss in detail about the importance of human resource strategy. HR का strategy जो रहता है वो क्या रहता है, important क्या है, financial strategy का importance क्या है. We'll talk a little bit about research and development strategy. We'll talk little basics about marketing strategy. फिर थोड़ा सा logistics strategy क्या होता है, आजकल उसका extension जो supply chain management के फॉर्म में हम यूज करते हैं उसका relevance क्या है. तो ऐसे आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिलेगा बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस का, एंड उनके अंदर एक फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंस क्या है वो जरूर हमको पता चलेगा. I do agree that this chapter is little redundant and old, and I believe all those individual functional level strategies needs also to be revamped. खत्म कर उसको थोड़ा इंप्रूव कर देना चाहिए. ये मैं एग्री करूंगा, मैं कंप्लीटली डिसएग्री नहीं करूंगा इस चीज से, बट स्टिल एक आपको अच्छा इंट्रोडक्शन जरूर मिलता है, एंड यू डू गेट टू नो अबाउट some basics about all these different strategies. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन द वेटेज इज गोइंग टू बी 4 to 5 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड दे कैन आस्क यू एनी वन ऑफ द फंक्शनल स्ट्रेटजीज. सबसे कॉमन अगर आप मुझे पूछोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम गोना स्टार्ट विद द ह्यूमन रिसोर्स एचआर स्ट्रेटजी. रिसेंटली उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वापस से. सो इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू इन मार्किंग द इंपॉर्टेंस important function level strategies. We're going to start with HR, human resource strategy. उसके अंदर पेज नंबर 134 पे आओ. Can you see strategic role of human resource in the strategic management as a process? ये सबसे common question. I think recently यही question exam में पूछा गया था. This is a very very common question. Then under research and development, तीन approaches जो हैं research and development के, first approach, second approach, third approach, उनके ऊपर एक अच्छा question आ सकता है. Then supply chain management क्या होता है, what is supply chain management and how do you implement a supply chain management? This can be a good question. Rather it has been asked once again. उसके बाद में I will not say production strategy बहुत important है because rarely उस पे क्वेश्चन पूछा गया है. हाँ, how do you evaluate the net worth of a business? Again that is an important question जिसके ऊपर एक अच्छा 5 mark question आ सकता है in terms of financial strategy. It's a very very interesting question, very very common question also. Then marketing strategy को हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज वो काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है. दैट इज द ओनली स्ट्रेटजी जिसको एक्सट्रीम डिटेल में आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो उसको जाने दीजिए, उसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द एचआर स्ट्रेटजी फॉर नाउ. Come to page number 133, human resource strategy. Now, talking about the importance of HR. If you ask me, 15-20 years back, the role of HR was very limited. Rather, I would say the role of HR was simple. It will, take care of day-to-day administration part. It will help you in the hiring of new employee. That's all. But in today's world, if you ask me, HR is one of the most important departments in any kind of organization. Rather, the bigger the organization, the bigger the role of HR department in that organization. And HR का जो main role अगर आप मुझे पूछोगे, वो obviously सही तरीके से recruitment करना रहेगा नए employees का, उनको train करना, उनके performance को regularly evaluate करते रहना, appraise करना, and again कितना compensation किस particular employee को मिलना चाहिए, किसका promotion होना चाहिए, कैसे उनका reward mechanism define होना चाहिए, सब कुछ हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट के कंट्रोल के अंदर आता है. तो सर प्री सिलेक्शन मतलब किन किन लोगों का सिलेक्शन करना है, किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे लोग हमको चाहिए, हाउ मेनी जॉब्स वी नीड टू फिल, दिस डिटेल्ड एनालिसिस कम्स अंडर प्री सिलेक्शन स्टेज. देन आफ्टर दैट कम्स योर सिलेक्शन स्टेज जहां पर आप एक्चुअली में जाके रिक्रूटमेंट करते हो, लोगों को हायर करते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. एंड देन कम्स योर पोस्ट सिलेक्शन जहां पर आप ट्रेनिंग देखते हो, उनका अप्रेजल करते हो ना रेगुलर बेसिस, ताकि आप अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को अच्छे से रिटेन कर सकते हो एंड उनके एफिशिएंसीज को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हो. ये हमारा ब्रॉडर टर्म्स के अंदर नॉर्मली रोल होता है एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का या एचआर डिपार्टमेंट का. टॉकिंग अबाउट दैट, लेट्स टॉक इन डिटेल. देखो
एचआर का काम होता है सर अच्छे से प्लान करके मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को। तो नॉर्मली एक एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो फॉलोइंग चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। दिस इज द कॉमन रूल। नॉर्मली एक एचआर किसी भी कंपनी में क्या रोल प्ले करता है वो बता रहा हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआर वो बाद में डिस्कस करेंगे। इन जनरल इफ यू आस्क मी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दैट मीन्स आइडेंटिफाइंग हमें किस टाइप के लोग चाहिए और सही लोगों को रिक्रूट करना, उन्हें रेगुलरली ट्रेन करना ताकि दे आर फिट फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब। देन अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब उनके काम को, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते जाना, कौन लैक कर रहा है, किसको इमीडिएटली एक्शन की जरूरत है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। सो कॉम्पनसेशन विल इंक्लूड देयर सैलरी कॉम्पोनेंट्स, bonus components and other increments and promotions. So all these activities you can say at a broader level comes under the purview of HR department. Then in other words, if you ask me, स्ट्रेटेजिक फोकस के हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो एचआर का काम हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्री सिलेक्शन, मतलब कोई भी सिलेक्शन करने से पहले का प्रैक्टिस। तो इसके अंदर हमको एनालिसिस करना होगा कि किस किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे लोगों को हायर करना है, उनके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाउ मच सैलरी वी शुड बी प्लानिंग टू पे इंडिविजुअली एम्प्लॉइज एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल। सो ये जो आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस है, ये प्री सिलेक्शन प्रैक्टिस में आता है। After that comes your selection practices. That means going out in the world and recruiting right people for the job. Third one is post selection. That means once the right staff is selected, उसको regularly train करना, उनके performance को appraise करना या evaluate करना, that comes under post selection practices. Spend 2 minutes, read basics about these 3 categories and in general normally क्या क्या activities एक HR परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये जनरल चीजें, इसको पढ़ो, यहाँ जरूर एमसीक्यू आ सकता है, बट एग्जाम क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेटेजिक रोल क्या है एचआर का वो हम डिस्कस करेंगे। सो क्विकली स्पेंड 5 minutes, read these parts, then we'll go to the role of HR in case of strategic management. We'll discuss that part in detail. Done? Yes or no? Good. So let's go to the next one. That is the most important question under HR strategy. Strategic role of human resource management in the overall strategic management framework. तो strategic management के अंदर एक HR का मेन रोल क्या रहेगा, यहाँ पर वो एक ओवरव्यू देगा कि HR क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन strategic management process. The first one is providing purposeful direction. So it's simple. Selecting or getting the right people for right job is the biggest possible task. Making a plan of action that in next 5 years हम ये achieve करेंगे वो आसान चीज है, but finding right set of people and putting them at right position is the most important part. So I would say HR का सबसे important role है वो एक logical direction देता है हमारे plans को एक सही तरीके से actions में convert करने के लिए, because they actually help you to get right people who will be able to lead the entire organization in the right direction, because right people is required to actually achieve all important objectives of our company. So yes, वो एक purposeful direction provide करता है by getting right people for right jobs so that the organization can achieve their desired goals and objectives. Number 2, creating competitive atmosphere. Now इसका मतलब क्या है, like HR का ये काम भी है that when they hire the people, just hiring part is okay. After that, how do you create a competitive atmosphere in the entire organization? For that, you need to keep identifying who is doing a better job than other people. Usko आप reward करते जाओ. Like I kept on telling this. Like in Deloitte when I used to work, there's something called a spot award. Like for example, someone was spotted working really hard in a particular month.
एक स्मॉल एक्नॉलेजमेंट, छोटा सा कार्ड मिलेगा, मे बी एक शॉप को वाउचर मिलेगा, बट इट्स अ वेरी बिग डील फॉर अ पर्सन बिकॉज उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिला है इन कंपेरिजन टू अदर पीपल। वो बाकी लोगों के लिए एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर एक्ट करता है दैट दे आल्सो नीड टू बकल अप, दे आल्सो नीड टू गेट बैक टू द बेसिक्स ताकि वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो यस, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट क्रिएट करने में एचआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, देयर आर टू इंपॉर्टेंट वेज ऑफ अ बिजनेस कैन अचीव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। मैं आपको बोला था कभी कभी वो कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे। तो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू मी। ऑब्वियसली उसकी वजह से तुम या तो कॉस्ट लीडरशिप चूज करो या डिफरेंशिएशन चूज करो या फोकस स्ट्रेटजी चूज करो। आई नो दे आर गोइंग लिटिल बिट टू मच इन डिटेल। उस वर्ड का मतलब था एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट करना, जिससे आप कोई भी स्ट्रेटजी चूज करो, चाहे कॉस्ट लीडरशिप हो या डिफरेंशिएशन हो या फोकस हो या बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर हो, आप उसको अच्छे से अचीव सॉरी आप उसको अच्छे से अचीव कर पाओगे बिकॉज आपके पास में मोटिवेटेड टास्क फोर्स रहेगा, एम्प्लॉइज रहेंगे जो एक्चुअली उस स्ट्रेटजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, फैसिलिटेशन ऑफ चेंज। इस पूरे आंसर में उन्होंने बहुत ही ज्यादा रामायण लिख दिया है। दे मेड अ लिटिल बिट कचरा बाय कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। फैसिलिटेशन ऑफ चेंज का मतलब होता है इफ यू वांट टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंज in the existing corporate culture of a company, it's not an easy job. I kept on giving example. For example, everyone is wearing semi-formals in your office. Suddenly you realize there's an importance and our competitors are buckling up and we need to have more professional approach within our dressing sense related when we are visiting the client place. So can I say maybe we need to create an environment within the company where everyone believes in that. So starting from your partners, senior manager, directors, all of them need to drill this, and obviously HR will play an important role of communicating why it is really important. So that's how informal or formal way a change can be facilitated. Obviously it's not an easy job to bring about a change. It's more of a long term process. We'll talk about how do you bring strategic change in an organization in chapter number 8. वहां पे कर्ट लुईन ने एक 3 स्टेप प्रोसेस भी दिया है कैसे बदलाव लाया जा सकता है, और ऑब्वियसली एचआर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ब्रिंगिंग अबाउट एनी चेंज इन दी एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ अ कंपनी। अब देखो थोड़ी बड़ी बातें बोली है। एचआर विल बी मोर कंसर्न्ड अबाउट substance over form, obviously accomplishments rather than the normal activities, and practice and the theory. Obviously सिर्फ वो बात नहीं करेगा, वो चाहेगा प्रैक्टिकलिटी पर्सपेक्टिव से एक कंपनी में अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। तो सर इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो एचआर को अच्छा टाइम डिवोट करना पड़ेगा टू प्रमोट इंपॉर्टेंट चेंजेस rather than to maintain status quo. Status quo मतलब सेम एनवायरमेंट को अगर कंटिन्यू करना है उसके लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको बदलाव लेकर के आना है उसके लिए आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, ज्यादा रिसोर्सेज को डिवोट करना पड़ेगा। बट यस, एचआर कैन ब्रिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ चेंज विच यू वांट टू ब्रिंग विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, diversion of workforce. I'm sure you would have heard of the word diversity. Basically a combination of male and female employees, a combination of younger workers and experienced elder workers. So that kind of diversion is required in the workforce ताकि सब लोग motivated रहें, एक दूसरे से सीख सकते हैं एंड आगे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। Can you see, in a modern organization, management of diverse workforce is a great challenge. Workforce diversity means male and female workers working together, young and old workers working together, educated and uneducated workers, skilled and professional employees. So a combination, a mixture of all of them, when they are sitting on the single plate, it's difficult to manage by HR, but yes, that's their important role. Next, empowerment of human resource. हाँ, ये HR का important role है that जो already empowered employees हैं वो अच्छा करेंगे, but there are some employees who join at a very basic or a raw level. उन्हें grow करने में help करना, उन्हें अपना खुद का strengths और weaknesses identify करना. So for example, in every big four or a good consulting firm, like whenever you join those firms or a consulting entity, आपको ना एक काउंसलर अलोकेट किया जाता है। काउंसलर का काम क्या है, आपको हर क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे हैव 2-3 मीटिंग्स, अंडरस्टैंड हाउ यू आर ग्रोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, हाउ कैन दैट बी रिजॉल्व। सो बेसिकली इंडिविजुअल एम्प्लॉय के एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाएगा। दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट। दैट इज समथिंग व्हिच इज मैनेज्ड बाय एचआर। बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, ऑल ऑफ यू नो रियली वेल, कोर कॉम्पिटेंसी मतलब ऐसी कॉम्पिटेंसीज जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प करती है। तो एचआर हमें, रादर एचआर खुद अपने आप में कोर कॉम्पिटेंसी बन सकता है कुछ कंपनीज का, या एचआर हमें सही कोर कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करके डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। कोर कॉम्पिटेंसीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ human resource department, or it can be marketing department, or it can be my technological department. It can be any department जिसकी वजह से मुझे edge मिलता है in comparison to my competitors. And last one, अगर आप चाहते हो एक अच्छा work ethics
एंड एक अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट किया जाए आपकी कंपनी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट काम एचआर का ही रहेगा। कोई बदलाव लेके आना है तो एचआर लेके आएगा, कुछ चीजों को स्टेबलाइज करना है वो भी काम एचआर का रहेगा। तो यस, एक फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर जहां पे लोग एक दूसरे को हेल्प करें और एक ऑर्गेनाइजेशन शेयर्ड विजन पे काम करे, ये डेवलप करने के लिए एचआर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई एग्री विथ यू, सम years back even I used to believe that HR doesn't do much, they just do time pass, but in today's world, in this competitive environment, the role of HR is extremely important. From finding the right people, training them properly, creating a good competitive environment and retaining them, that is a bigger challenge for a lot of companies. HR plays that important role in the overall strategic management framework. So yes, ये role काफी improve हो चुका है और काफी relevant हो चुका है। Quickly spend 2 minutes, you should know any of these 4-5 points. अगर आपको कोई भी 4-5 पॉइंट आते हैं, you're more than good. But remember, this question was recently asked in the examination, so I don't expect a question on HR in the coming attempts comparative terms के अंदर। पर मैं ये नहीं बोलता आपने छोड़ देना चाहिए, अगर छोड़ना होता तो मैंने डिस्कस नहीं करना चाहिए था। Quickly go through this, guys. We'll start with the next one then. We'll move on to research and development strategy. Done, guys? Can you go to the next one? Okay, let's go to number 2, research and development strategy. If you ask me, it may not be possible that every organization has a separate research and development department. It requires huge amount of financial resources. So हर किसी के लिए शायद एक अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रखना और रिसर्च करना आसान काम नहीं है। बट यस, bigger entities, if you ask me, like Samsung, Apple, they do have a huge or rather heavy investments in their research and development departments. Yes, तो सर इसमें जो अलग अलग अप्रोचेस हैं वो थियोरेटिकल इन नेचर रहेगा। यस, हर कंपनी अपने हिसाब से अपना अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्रोच बना सकता है, बट इन्होंने बोला है इन जनरल दुनिया में 3 अलग अलग अप्रोचेस हैं व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो 3 जनरल अप्रोचेस इन्होंने डिस्कस करके आपको दिए हैं। एक काम करो, फटाफट से आओ, कम टू पेज नंबर 132। 3 मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्रोचेस फॉर इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मतलब 3 अलग अलग स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। या तो एक कंपनी चूज कर सकता है अप्रोच 1 या 2 या 3 या कॉम्बिनेशन ऑफ देम एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग अप्रोच भी हो सकता है। फर्स्ट अप्रोच क्या है? फर्स्ट अप्रोच ऐसा है सर, दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेस, वो सर बहुत बड़ा अमाउंट या बहुत रिसोर्सेस अलोकेट करते हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, बिकॉज दे बिलीव they want to be the first one to bring a new technological development all together in the industry. मतलब वो सबसे पहले नया टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर। they want to be the first one to develop and implement a new product in the market altogether. This approach is going to be very risky, very expensive, but obviously if it works well, it can do wonders for organization. Can you see? The first approach is marketing new technological products. मतलब नया प्रोडक्ट आप ही लॉन्च करने वाले हो, देखो, be the first firm to market new technological product. It is going to be a glamorous, exciting strategy, but also a dangerous one because of huge allocation of resources. It may not work for all the organizations. But yes, the organizations who have strong balance sheets, who have strong research and development departments can definitely go for this one. And obviously इससे directly आपको market में leadership मिल सकता है. You can achieve that leadership in the market जो हर कोई organization achieve करना चाहता है.
नंबर टू देखो, मैं बोलूंगा नंबर टू भी इक्वली इंटरेस्टिंग है. इफ यू आर नॉट द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री, सेकंड अप्रोच कैन बी अ बेटर अप्रोच. ये इस अप्रोच को बोलता है इनोवेटिव इमिटेटर. मतलब क्या है, रादर देन यू डेवलपिंग that new technological product for the first time, you wait for market leaders to come up with a new technology and probably understand क्या वो टेक्नोलॉजी मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, एंड प्रॉब्ली उसको अंडरस्टैंड करते हुए आप बेटर तरीके से उस टेक्नोलॉजी को नए रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला करके इनोवेटिव तरीके से उस प्रोडक्ट को बेटर तरीके से लॉन्च करो, ताकि आपके कस्टमर को लगे हाँ ये अब ज्यादा वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रहा है. सेम टेक्नोलॉजी, मे बी टेक्नोलॉजी लॉन्च किसी एक्स ने किया होगा, बट वाई का प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यू एडिशन वाला हो सकता है एक मेरे कस्टमर के लिए. देखो, बी अ इनोवेटिव इमिटेटर, मतलब वो कॉपी करने के लिए बोलता है. इमिटेटर का मतलब क्या, द वन हू कॉपीज थिंग्स, यू गेट माय पॉइंट. वो आपको बोल रहा है कॉपी करो बट इनोवेशन के साथ. देखो क्या बोलता है, सर आप अपना कॉस्ट को मिनिमाइज करो, ज्यादा खुद से टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के पीछे बच जाओ. अलाउ अ बिगर फर्म टू फर्स्ट डेवलप द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड लेट देम डेमोन्स्ट्रेट टू द मार्केट. अगर मार्केट उसको एक्सेप्ट करता है तो आप उसको फॉलो करो और सिमिलर प्रोडक्ट बनाओ. ऑब्वियसली सर आपको अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लोग लगेगा एंड सर अच्छा मार्केटिंग डिपार्टमेंट लगेगा, ताकि आप उस सेम प्रोडक्ट को, उस सेम टेक्नोलॉजी को एक बेटर तरीके से, नए तरीके से मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हो और बेच सकते हो. लॉट ऑफ कंपनीज डू दिस, इट्स वेरी वेरी कॉमन. आई ऑलवेज से there's no harm in copying the best. The only thing is, are you copying it in such a way that are you getting more value for your customers? If you're getting more value for your customers, that is still a good option. I do agree, no, it is not possible for every organization to approach the first way. That means वो ही सब कुछ नया क्रिएट करे, वो शायद हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा. तो इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन. आई रेस्पेक्ट द सेकंड पर्सन ऑल्सो हु अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग एंड देन ट्राइज टू still add some of his or her charisma to the product, innovation to the product and sell it in a different way. मतलब सेकंड वाला बंदा अभी भी ना इनोवेशन करने के बारे में सोच रहा है. हाँ शायद वो नया टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा है, उस टेक्नोलॉजी को बेच लेते हुए बेटर तरीके से प्रोडक्ट को बना के बेच रहा है, वो भी एक अच्छा अप्रोच है. थर्ड वाला ऐसा अप्रोच है जिसको लगता है मेरे को ये सब कुछ नहीं करने का है, आई हैव ओनली वन थिंग इन माइंड, मेरे को कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने का है. लेट पीपल कम अप विद न्यू टेक्नोलॉजी, लेट देम कम अप विद न्यू इनोवेशंस, आई विल जस्ट कॉपी दैट ब्लाइंडली एंड आई विल गो विद इकोनॉमीज ऑफ स्केल. मतलब मैं इतना बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करेगा कि मैं उस सेम चीज को लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में प्रोवाइड करेगा. देखो, बी अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, मतलब बाय मास प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स similar to but less expensive than products recently introduced. This will require more investments in plant and machinery than actually research and development, because यहाँ पर ज्यादा रिसर्च करने का आवश्यकता नहीं है. या सिंपल सा रिसर्च है भाई, बेटर प्लांट एंड मशीनरी से कैसे कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट को बनाया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा. बिकॉज यहाँ पर आप वॉल्यूम भी खेलना चाहते हो, ना कि क्वालिटी पे एट ऑल. बिकॉज आपको लगता है आपको सेम क्वालिटी बेचने का, बट यहाँ पे बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर जाने का आपको, मतलब मे बी थोड़ा बहुत फीचर साइड कर दिया, बट इनडायरेक्टली मोर वैल्यू फॉर मनी इज व्हाट यू आर लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ थर्ड अप्रोच. देखो यार, रियल लाइफ में ना हर कंपनी इनका इस्तेमाल अलग तरीके से करता है. ये बहुत डिफिकल्ट होगा आर्ग्यू करना कि यार एप्पल तो फर्स्ट ही करता है या सैमसंग तो फर्स्ट ही अप्रोच करता है. इट इज गोइंग टू बी रियली स्टूपिड. फॉर एवरी प्रोडक्ट दे माइट हैव अ डिफरेंट वे आउट. यस, दे डू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट इट इज गोइंग टू बी रियली स्टूपिड टू कमेंट कि हाँ ये कंपनी ने यही किया है हमेशा. यू नेवर नो who did develop those things earlier, who copied from whom, and they keep fighting battles, legal battles over a lot of features. You all know it really well. So it's wiser not to comment on this. It's wiser to understand what theoretically they mean. Real life में हर कंपनी का सोच अपने हिसाब से अलग रहेगा. Every approach is appropriate. It depends upon company to company. According to me, these three are the approaches in terms of research and development. Quickly spend 2 minutes इन तीनों को वापस से पढ़ो. ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया एग्जाम में, सो यू नीड टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल अबाउट दीस क्वेश्चंस गाइस.
Now, a student asks, sir, will a company usually stick to one of these approaches or they will switch between these two approaches? They will switch here. I'll tell you honestly, in today's world rather. I'll tell you there are more approaches which are not given to you theoretically. The another approach which is very common is, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. आपको क्या लगता है? There is a new company who came up with new technological, let's say, technological revolution एक particular industry में. आपको लगता है आपके पास बहुत पैसा है, आप एक काम करो ना, आपको ये बनाने का ही नहीं है, आप उस कंपनी को खरीद लो डायरेक्टली. Acquire those companies. So rather, maybe you can be such a bigger company that you just have such a huge balance sheet, such a strong balance sheet that you can just acquire all these new technologies. कुछ करने का जरूरत ही नहीं है. हाँ, once they are acquired, you run them the way you want to run them. So I'm just trying to say there are so many new approaches nowadays. I'll tell you one more. फर्स्ट अप्रोच में लोग बोलते हैं आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब यू आर द फर्स्ट वन टू कम विद अ न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इन द मार्केट. तो आपका ऐसा एडवांटेज रहेगा. मैं बोलता हूं यहां पर आपके पास में लास्ट मूवर एडवांटेज भी है. व्हाट इज लास्ट मूवर एडवांटेज? लेट्स से फर्स्ट मूवर आया, उसने 2 साल तक एक टेक्नोलॉजी को बेचने का ट्राई किया, प्रीमियम प्राइस चार्ज करने का ट्राई किया, कुछ लोगों ने खरीदा पर मासेस पे नहीं जा पाया. सेकंड वाले ने और फीचर्स चेंज किए, थोड़ा और लोगों ने एक्सेप्ट किया. मे बी आपको समझ में आ गया होगा क्या लोग एक्सेप्ट करते हैं और क्या लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. Now, after understanding all this, you enter the market at last position. Normally, assumption है, but last आप रहोगे, कोई गारंटी नहीं, आपके बाद में भी कोई एंटर कर सकता है. But assuming एक इंडस्ट्री मैच्योर हो चुका है, आपको लगता है now you understand the market really well, now you enter the market and now you kill everything. It is possible. लास्ट मूवर एडवांटेज अचीव करने के लिए आपको बहुत स्मार्ट होना चाहिए. आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ लेना चाहिए आराम से. Once you have a detailed analysis of everything and you know that you can create a better product which no one else has created in this industry, maybe you will win the market. शायद आपने कुछ भी नहीं किया होगा रेवोल्यूशनरी, पर आपने वो काम किया है जो इंप्लीमेंटेशन किसी और ने बेटर नहीं किया. इवन दैट इज अ बिगर अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग लाइक दैट अकॉर्डिंग टू मी. डू यू गेट माय पॉइंट? I think if I'm not wrong, let me give you an example. Whether it is Asian Paints or any company, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को नाम याद नहीं रहते, बट एशियन पेंट्स रिसेंटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक, बट आई थिंक एशियन पेंट्स वो कंपनी है जो रिसेंटली बोलता है नाउ दे आर गेटिंग इनटू इंटीरियर डिजाइनिंग. मतलब दे विल हेल्प यू टू बाय राइट प्रोडक्ट्स एंड डिजाइन योर हाउसेज एंड ऑफिसेज द वे यू वांट. एशियन पेंट्स ही है शायद मेरे हिसाब से. यस, एशियन पेंट्स इज गेटिंग इनटू दिस. सो बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर्स आज तक क्या था, इंडिविजुअल अलग अलग छोटे छोटे फॉर्म्स हुआ करते थे या इंडिविजुअल एक एक इंसान हुआ करते थे. Now Asian Paints realized because of e-commerce, now a lot of architects, a lot of interior designers have their presence on social media, and because of which they're getting a lot of traction, they're getting a lot of work. So Asian Paints realized we have everything, and that is one of the biggest performers. Like they are absolutely brilliant organization. In terms of profitability, in terms of the way they have been working for the last 10 to 15 years, they are phenomenal. And they have very, very strong, cash balances in their balance sheet. So they might have realized that this is an opportunity where we need to also take advantage of e-commerce environment and maybe enter into interior designing and all. We have that set of people. We have that much research and development who has done wonders in terms of painting people's houses and their offices. Why not get back to even more? It's an extension only. Like I would say, it's a concentric diversification where there is something common. From there, you are getting into a new industry altogether. So you're using something which is market reputation, your expertise in terms of understanding your customer needs. You have the, right balance sheet for this. Now you're getting into the industry. So, last mover advantage भी बहुत interesting होता है guys. ये सबसे कम लोग acknowledge करते हैं. हर किसी को लगता है first mover advantage important है. I believe in majority industries nowadays, the last mover is also making their mark, visible to everyone. But it depends, first mover कितना strong है, कितना weak है, उसके ऊपर भी depend करेगा. तो yes, ये 3 broader approaches है. Theoretical है यार, real life में चीजें बहुत अलग तरीके से function करती है, according to me. I hope you get that. Are we good? Yes or no? चलो ऊपर आओ. एमसीक्यू में आ सकता है गाइडलाइंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये आपको सिर्फ कुछ थियोरेटिकल गाइडलाइंस दे रहा है कि कौन से सिचुएशन में क्या अप्रोच रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सही हो सकता है. 4 अलग अलग सिचुएशन है. लेट्स रीड सिचुएशन नंबर 1. क्या बोलता है? इफ रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस इज स्लो, मतलब
जो टेक्नोलॉजिकल बेस बदलाव जो आ रहे हैं इंडस्ट्री में वो काफी स्लोली आ रहे हैं, बट सर मार्केट ग्रोथ जो है वो मॉडरेट स्पीड से काम कर रहा है। मतलब सर हमको लगता है यहाँ पर अच्छे बैरियर्स है न्यू एंट्रेंस के लिए, और सर मार्केट में इतना ज्यादा ग्रोथ भी नहीं है कि आप सब कुछ मिस आउट कर दोगे, देयर इज अ मॉडरेट ग्रोथ, सो देयर इज गुड ग्रोथ। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकली जो बदलाव आ रहे हैं वो काफी स्लो आ रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर यू टू हैव इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर वो रेकमेंड कर रहा है इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन बी अ बेटर सोल्यूशन। शायद आप एक अच्छा प्रोसेस क्रिएट करके एक मोनोपोली क्रिएट कर पाओगे, बिकॉज टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो है तो आपके पास टाइम रहेगा उस मोनोपोली से अच्छा पैसा कमाने का। दिस इज गोइंग टू बी योर सिचुएशन नंबर 1। लेट्स गो टू नंबर 2। अगर टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से बहुत रैपिडली बदल रहा है एंड मार्केट बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है, मतलब ग्रोथ बहुत खराब है मार्केट में बट टेक्नोलॉजी बदलते जा रहा है बहुत स्पीड से, मैं बोलूंगा ये वो सिचुएशन है, थियोरेटिकली भी सही लिखा है, यहाँ कुछ भी नहीं करना चाहिए बिकॉज टेक्नोलॉजी इतना जल्दी बदल रहा है। बिफोर यू इवन थिंक ऑफ मेकिंग मनी बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी, द मार्केट में ग्रोथ ही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो टेक्नोलॉजी बदल जाएगा मार्केट से तेरे पैसा ही नहीं मिलने वाला। तो सर यहाँ पर तेरा टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो रहा है। देखो, इफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली, market is growing slowly, then a major effort in R&D may be very risky, क्योंकि सर आपका जो डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा एंड उसके लिए कोई मार्केट भी नहीं, बिकॉज अच्छा ग्रोथ भी विजिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ वो रेकमेंड कर रहा है सिचुएशन नंबर 2 के अंदर आप कुछ भी मत करो, वो बेटर रहेगा। थर्ड वन, इफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग स्लोली बट मार्केट इज ग्रोइंग क्विकली, मतलब ग्रोथ बहुत खतरनाक है और टेक्नोलॉजी में बहुत स्लो 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 ग्रोथ है, यहां पर तेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, तू खुद इनाउंस नहीं कर पाएगा, यहां पर तो एक काम कर, आउटसोर्स कर, जल्दी से तेरे लिए कोई थर्ड पार्टी R&D पे काम करे, तेरे को बेटर प्रोडक्ट बना के दे, ताकि तू जो ग्रोथ आज के दिन में विजिबल है ना उसका फायदा उठा सकता है। अभी भी तेरे पास चांस है बिकॉज ग्रोथ अच्छा है और नया प्रोडक्ट आने में, बदलाव आने में टाइम लगने वाला है बिकॉज टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो है। तो यहाँ पर वो रेकमेंड करता है तुम आउटसोर्स करो R&D को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, एंड गो टू अ फर्म हु कैन क्विकली डू इट फॉर यू एंड यू कैन टेक द एडवांटेज, बिकॉज अभी भी टेक्नोलॉजिकल में चेंजेस काफी स्लो है। लास्ट सिचुएशन देखो, अगर सर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी बहुत फास्ट है, मार्केट ग्रोथ भी, मतलब राइट नाउ देयर इज मनी, you don't know whether there will be money after 5 years, so it's better you acquire the technological introduce, मतलब जिसने नया टेक्नोलॉजी बनाया है उसको खरीद लो अभी का भी make as much money as you possible, because you never know after 5 years whether this technology will remain like this or not, whether the growth will remain like this or not. So in this case acquisition is the only way। जो एक well settled technological introduce करने वाला entity रहेगा उसको खरीदो और आगे बढ़ो। That is how I think right now a lot of industries are working in fourth stage, where they just believe in acquiring, because they believe right now there is a good growth potential. You never know how maturity of technology will change the demand in the coming years। वापस से बेटा ये थियोरेटिकल है, कोई परफेक्ट एग्जांपल एक कंपनी के लिए सेट करना बहुत ही बेवकूफी होगा, बिकॉज हर कंपनी इन सबके बहुत बियॉन्ड सोच के काम करता है, हर किसी का इंडस्ट्री का काम करने का तरीका अलग रहता है, हर इकोनॉमी के अंदर वो इंडस्ट्री का रेलेवेंस अलग रहता है। इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, बहुत ही डिफिकल्ट होगा कमेंट करना किसी भी एंटिटी के ऊपर डायरेक्टली। कोई भी एक कंपनी परफेक्ट फिट नहीं बैठेगा, मैं बोलूंगा हर कंपनी इन सबका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है अपने इंडस्ट्री और अपने बिजनेस के पोजिशन के हिसाब से। So these are some guidelines to you regarding research and development strategy. Quickly spend 2 minutes research and development के guidelines को वापस से पढ़ो, तीनों approaches को पढ़ो, and I'm sure आपको ये तीनों के तीनों समझ में आ चुके होंगे। Quickly spend 2-3 minutes, finish it off। Done?
Great. Just want to share one interesting instance with you. I was reading somewhere, I think few days back, Asian Paints is that company जिसने लास्ट 10 साल में एवरी ईयर पॉजिटिव रिटर्न दिया है. मतलब इवन इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट ईयर्स एशियन पेंट्स ने अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न दिया है हर साल. Rather, if I'm not wrong, in last 10 years, I think after 2008 or something, if you would have invested 1 lakh rupees, it would have been more than 20 lakh rupees today. I think 20x के beyond returns दिए हैं last 10 years के अंदर. It has been phenomenal. Rather, इस कंपनी का ग्रोथ स्टोरी तुम अगर पढ़ के देखोगे, 1990s it is existing, but consistency has been the key. Like उन्होंने हमेशा डेट के ऊपर रिलाई बहुत कम किया because they were generating enough cash by selling their products on a quarter by quarter basis. They never had that kind of problem. Yes, it is one of the most underrated stock, but it is something which has always acted phenomenally well. मतलब a great story. Rather, it has beaten a lot of NBFCs in terms of return after 2008 का जो 2008 का जो decline था ना, उसके बाद में अगर आप मुझे पूछोगे रिटर्न के टर्म्स के अंदर, this has been one of the best ones. Yes. So I'm just trying to say that's the kind of news and analysis you need to keep reading, because there are some sectors which we are hardly focusing on. Like majority of the people focuses mostly on the finance part, or let's say the banking or NBFCs in simple terms, or some of them just focus on, let's say, purely FMCG के अंदर pure FMCG people focus on HUL, people focus on Britannia, but they sometimes lose out these dark horses which actually create huge amount of wealth, not only for the investors, for the employees, for customers at large, and for the entire economy. So yes, that's a definite read. I will find, if I find it somewhere, I'll share it with you guys. But yeah, so I wanted to share with you, because I was reading an article about Asian Paints entering into interior designing for houses and offices. From there, I went to different reports, and I ended up reaching that particular section. Anyways, let's proceed to the next one, logistics strategy. Yes, again important one. Exam में question शायद chances है supply chain management के ऊपर आएगा rather than on logistics strategy. But let's understand, what do you really mean by the word logistics strategy? Logistics strategy का मतलब है एक ऐसा policy या एक process जिसके थ्रू एक कंपनी अपने inputs को कंपनी के अंदर लेके आता है. I mean the resources they get inside the organization, including the raw material. They convert those resources, and जो final products है उसको कस्टमर तक लेके जाता है. ये जो पूरा मैकेनिज्म है मेरे लिए नॉर्मली लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी कहलाता है. देखो, द मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग फ्लो ऑफ सप्लाईज, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट हो बाहर भी जाएगा टू अचीव अ गुड लेवल ऑफ सर्विस, जो हमें इंश्योर करता है राइट मटीरियल अवेलेबल है एट राइट प्लेस, at right time, of right quality and at right cost. ये एक जनरल लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी कहलाता है. इसका ही एक्सटेंशन बेटा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट ना थोड़ा बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. लॉजिस्टिक एक पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलता है एक कस्टमर को क्या चाहिए, उसके लिए बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैसे एक्वायर करोगे, सही मैन पावर को कैसे लेके आओगे, सही टेक्नोलॉजी कैसे चूज करोगे, कैसे बेस्ट पॉसिबल फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, फाइनल प्रोडक्ट को अच्छे से पैकेज कैसे करोगे, डिलीवर कैसे करोगे, आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करोगे, गारंटी वारंटी कैसे डील करोगे, ये सब कुछ आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक एक्सटेंशन है लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी का. बट हाँ, अगर आप मुझे पूछोगे इन सिंपल टर्म्स, हर कंपनी चाहेगा द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल उसके लिए जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ताकि उसके लिए एक ओवरऑल कॉस्ट कंपोनेंट रिड्यूस हो जाएगा और मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा. तो अगर आप मुझे पूछोगे क्या क्या क्वेश्चंस एक कंपनी ने अपने आप से पूछने चाहिए व्हेन दे आर डिजाइनिंग अ गुड लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी, दिस कैन बी अ एग्जाम क्वेश्चन, दैट व्हाट ऑल क्वेश्चंस नीड्स टू बी आंसर्ड बिफोर डिजाइनिंग अ गुड लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी. देखो, for a business organization to have an effective logistics strategy, it will involve raising and finding solution to the following questions. If you ask me, हमारे raw materials and components के sources क्या क्या available हैं, कितने मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, सर कौन से प्रोडक्ट्स कौन से मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे बनता है, क्या ट्रांसपोर्टेशन इतना आसानी से अवेलेबल है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज क्या है हमारे, हम रॉ मटेरियल्स को कैसे हैंडल करते हैं, हम ओवरऑल लेवल के ऊपर कैसे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं टू गेट द मटेरियल्स इनसाइड द कंपनी एंड गेट देम आउट ऑफ द कंपनी. ये कुछ जनरल क्वेश्चंस है जिनके बेसिस के ऊपर आप एक लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हो. आई वुड से दीज आर some basic examples. There are 1,000 more questions which needs to be identified and answered
to actually design a effective logistics strategy. It's not an easy job. A lot of companies invest a lot of years to make a strong logistics strategy. Amazon, Flipkart, these bigger entities are still trying to figure out the best possible way of logistics. Their still cost is very high. If this cost becomes low, if the quality becomes high, then their overall margins will improve significantly. तो अगर आप अच्छे से लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपका बहुत सेविंग्स होगा कॉस्ट में. तो सर कैन आई से आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे बाय हैविंग अ गुड लॉजिस्टिक स्ट्रेटजीज. आप कॉस्ट सेविंग कर पाओगे, इन्वेंट्री लेवल्स को रिड्यूस कर पाओगे, डिलीवरी टाइम जो कस्टमर तक का है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा, कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड या खुश रहेगा, एंड ओवरऑल ये आपके लिए एक कोर कॉम्पिटेंसी बन जाएगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प करेगा. Quickly spend 2 minutes. What questions needs to be answered before designing a logistics strategy, and क्या क्या फायदे हो सकते हैं एक अच्छे लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी के टू ऑर्गेनाइजेशन. ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए बट आ सकता है. जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, बट यू क्विकली स्पेंड 5 minutes on this, then we shall proceed. Done. You must be feeling very comfortable with this chapter. Like I think according to me, जो chapter 4, 5, 6 है ना, they are very logical chapters in strategic management. हाँ कहीं के थोड़ा कंटेंट थोड़ा बेवकूफी वाला है, कहीं कहीं very very minor places, but overall chapters तीनों के तीनों बिल्कुल logical है, समझ सकते हो, और language भी simple है, समझने के बाद आप एग्जाम में लिख भी पाओगे according to me. Are you feeling comfortable, guys? हाँ देखते संडे को जब टेस्ट होगा तो पता चलेगा कितना कंफर्टेबल हो तुम. How was your test on audit overall? Last Sunday, last to last Sunday, if I'm not wrong. Raise your hands. Were you comfortable with that audit test which was just prepared earlier? A bit lengthy. That's how audit is, trust me. In real life also it's a bit lengthy only. Recalling was issue. It's going to be always, but that 44 marks of MCQ and true and false is always going to save you. There is no recalling. Some MCQs were challenging. Good. Okay. Questions are identifiable. They have to be. So these were all, exam questions which have been asked earlier. So I picked up those exam questions only which ICAI has been asking regularly, just to ensure that you actually get the ICAI flavor. That is what I wanted, honestly. Okay. Seems good. I think those who have written the test are feeling little lengthy. It's going to be, guys. Lengthy. It's going to be there. Okay. Some MCQs were difficult. Obviously, every time there's going to be 4 or 5 marks MCQs which are not going to be easy. So the entire 30 mark cannot be simple. 20 mark can be very simple, but the 10 mark is going to force you to think. That should be the way MCQ should be asked, according to me. Okay. Let's continue. Hopefully this strategic management test paper also will be very helpful with you guys. Let's start with what is supply chain management. Now, no, I'll tell you honestly, I can give a paper presentation on supply chain management, like a really, really long paper presentation, because I don't know, this lockdown has,
helped me in getting married. Okay, and Namrata, she has done MS in supply chain management, and she has been working on supply chain management projects for over good now 4 to 5 years. So all I keep reading and keep knowing about things is new about, like the new aspects what I get to know is all about supply chain management. This one page doesn't do justice at all of really what supply chain management means and the amount of money these consulting firms make. Trust me, according to me, out of all these strategies, even if you have expertise in any one of them, that is the only thing which is going to be practically possible. And if you have expertise in any one of them, and if you have a, if you're a part of an organization which has a global presence, that means you're dealing with clients across the globe. That means Europe, US, Canada, everywhere. The amount of exposure you guys will have is just insane. Like all the terminologies, your procurement to, P2P process, procurement to pay process. Do you get my point? Your sales process, all these processes are going to actually make sense once you get into consulting. So I'm not asking you that all of you have to get into consulting, but if you get part of a consulting firm directly, indirectly, once or once in a while in life, you will realize the importance of everything what you're learning at intermediate level. Costing subject is going to be very, very helpful there. Strategic management in terms of terminology is going to be helpful. For example, cash cow word you learn from here. Like, for example, what is supply chain management, you're getting know from this place only. So I'm just trying to say these terminologies will build up your vocabulary. And when you are sitting for interviews or when you're sitting for group discussions, these vocabulary or these terminologies are actually going to help you to stand, one step or two steps ahead of other competitors or other players. According to me, this entire syllabus does justice with one thing. Your overall knowledge in terms of a lot of concepts will go to a different level, and that is going to take you to far more better places. I'm assuming that for all of you. Anyways, just come back. What is supply chain management? Theoretically, they say it is an extension of logistic strategy. I would say it is injustice. I would say supply chain management in their own is a different world altogether. Logistic is just small part of supply chain management. Supply chain management includes identifying the supplier, identifying the quality of raw material you want, identifying the good technology or plant and machinery what you need to procure. It includes identifying what your customer really wants. It includes, how to market your product better. It includes how to package your product better. It includes after sales services. It includes how to price your product. Everything comes under supply chain management. Rather, in simple words, अगर आप चाहते हो सही कस्टमर तक सही प्रोडक्ट या सही सर्विस सही समय पर सही प्राइस के ऊपर एंड सही तरीके से डिलीवर होनी चाहिए, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा. मतलब मैं बात कर रहा हूं, if my customer needs to be identified and served well, everything which comes along the way is part of supply chain management. That is in broader sense supply chain management. यहाँ पर आपको कंसल्टिंग का जरूरत पड़ेगा at every single stage. Maybe सप्लायर को आइडेंटिफाई करने के लिए कंसल्टिंग का आपका जरूरत पड़ जाएगा, या एक कस्टमर को क्या चाहिए वो समझने के लिए भी आपको कंसल्टिंग का जरूरत पड़ता है. हर एक स्केल पे जितना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होते जाएगा इतना ही ज्यादा वो कंसल्टिंग का नीड और रियलाइज करेगा, बिकॉज वो और बड़े स्केल पे काम करना चाहता है. Amazon, Flipkart, Walmart, name a company I'm talking about. There are certain organizations in every industry. All of them are heavily dependent on consulting firms because these firms helps them in identifying how to either manufacture better, how to either provide a service better, and how to ensure that a customer is ready to pay you higher prices. That is why they shell out huge amount of fees to these consulting firms. Doesn't matter. Come back to basics. What is supply chain management? Sir, it is defined as a process of basic BCom language, planning, implementing, and controlling this overall supply chain operations. And they have not defined what really supply chain operations are. If you ask me, supply chain operations, जैसे मैंने बताया आपको बेटा कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके लिए सही सप्लायर, सही रॉ मटेरियल क्वालिटी क्या रहेगा, उसे हम कैसे बेस्ट तरीके से प्रोक्योर करेंगे, उसे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल सर्विस के अंदर, वो कैसे पैक करके डिलीवर किया जाएगा, आफ्टर सेल सर्विस कैसे दिया जाएगा, उस सेम कस्टमर को नया प्रोडक्ट फ्यूचर में कैसे बेचा जाएगा या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कैसे दिया जाएगा, ये सब कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है. इन सिंपल टर्म्स इफ यू आस्क मी, इट्स अ क्रॉस फंक्शनल अप्रोच of managing the movement of raw material into organization and the movement of finished goods out of organization. I would say ये तो बिल्कुल लॉजिस्टिक वाला डेफिनेशन हो गया. सिंपल शब्दों में एक लाइन रहेगी यहाँ पे, it encompasses
all movements and storage of raw material, WIP and finished goods from point of origin to point of consumption. ये सब अलग अलग तरीके से वो सब डिफाइन करने का ट्राई कर रहा है. इन अदर वर्ड्स अगर आप मुझे पूछोगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. It is a tool of business transformation and involves delivering right product. ये मटेरियल नहीं है, यहाँ क्या वर्ड है, right product or service at right time to right place at right price to the right customer. ये सब कुछ मेरे लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम होता है. हाँ सर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक एक्सटेंशन है थियोरेटिकली लॉजिस्टिक का, बट देयर आर डिफरेंसेस. लॉजिस्टिक्स से फोकस करता है इनबाउंड एंड आउटबाउंड ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला. इन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अनफॉर्चुनेटली डिफाइन नहीं किया है, बट वो बहुत डिटेल में है, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, एंड लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट रियली सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज. अभी गुड, क्विकली स्पेंड 2 मिनट्स. आप एग्जाम में क्या लिखोगे मैं आपको बोलता हूँ. आप एग्जाम में ये पॉइंट डिफाइन करोगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी डिफाइन कर सकते हो. उसके बाद सीधा ये जो इट इज अ टूल ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन वो आपने लिखना चाहिए, और आप बोल सकते हो यस इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिस हैज बीन अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आया तो आप यही कंटेंट लिख के आओगे. जनरल क्वेश्चन आया सप्लाई चेन मैनेजमेंट में तो जनरल कोई भी 3-4 पॉइंट लिख सकते हो. अभी गुड. अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, हाउ सप्लाई चेन इज रेलेवेंट फॉर ऑडिट. इफ यू आस्क मी फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट डायरेक्टली कोई रेलेवेंस नहीं है. इंटरनल ऑडिट तो बहुत रेलेवेंस है, बिकॉज सप्लाई चेन ही इनडायरेक्टली मेरे सारे कोर ऑपरेशन कंट्रोल्स रहेंगे जिनको आपको इंटरनल ऑडिट में कवर करना होता है. नंबर 1, फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको सप्लाई चेन को रिलेट करना ही है, डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर अगर करना ही है तो अगर एक कंपनी में एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड जो रहेंगे वो ओवरऑल सप्लाई चेन के अंदर ही रहेंगे, तो उन फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पूरा सप्लाई चेन प्रोसेस समझना पड़ता है. वो आपको बता सकता है शायद कोई लूप होल या वीकनेस इन कंट्रोल है या कोई एम्प्लॉय कैटेगरी फ्रॉड्स है अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो सप्लाई चेन प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग से आपको मिल सकता है. दैट कैन बी द रेलेवेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट. क्विकली स्पेंड 2 मिनट्स, पढ़ो फटाफट से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे हाउ डू वी इंप्लीमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट. बहुत थियोरेटिकल लिखा है, बहुत थियोरेटिकल. बेसिक स्टेप्स चला दो. Done. Now, how do you implement supply chain management? Trust me, उन्होंने हाउ का आंसर दिया ही नहीं है. इसने बोला है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती है. तो अगर आप मुझे पूछोगे सिंपल शब्दों में, ऑब्वियसली प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, दैट मींस कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट, उसके बाद में ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट आएगा, हाउ डू यू डिलीवर द फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर, एंड ऑब्वियसली सारी एक्टिविटी से कंपनी खुद करे जरूरी नहीं है, इनमें से लॉजिस्टिक वाला पार्ट आउटसोर्स हो सकता है. यू गेटिंग माय पॉइंट. पैकेजिंग वाला पार्ट आउटसोर्सिंग हो सकता है, मार्केटिंग वाला पार्ट आउटसोर्सिंग हो सकता है. तो यस, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग दैट इज कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट आएगा. सम ऑफ द एक्टिविटीज कैन बी आउटसोर्स एंड देन कम्स योर आफ्टर सेल्स सर्विसेज. क्या क्या अदर सर्विसेज या मार्केटिंग आप प्रोवाइड करते हो या अदर सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर को बेटर सर्व करने के लिए, एंड इस प्रोसेस पूरे प्रोसेस को इवैल्यूएट करते रहना चाहिए कि हमको कहां कहां क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है. सी, प्रोक्योरमेंट दैट इज गेटिंग द रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिलीवरी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर, आउटसोर्सिंग मतलब ऑल द एक्टिविटीज जो भी सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ शायद कंपनी खुद से नहीं करने वाला है, कुछ आउटसोर्स भी करने वाला है. कस्टमर सर्विसेज विल इंक्लूड योर आफ्टर सेल सर्विसेज टू द कस्टमर, एंड लास्ट वन इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट. दैट मींस इवैल्यूएटिंग दिस एंटायर प्रोसेस कि हम कहां कहां लैग कर रहे हैं, कहां कहां क्या क्या इंप्रूव हो सकता है. ये सब कुछ मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट बनता है. इसमें जो पहला वर्ड है वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है, वो कहलाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एक एग्जांपल है वो सिर्फ
कि सर एग्जैक्टली हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या बदलाव लाएं जो शायद हमारा कस्टमर ज्यादा प्रेफर करेगा। तो एक कस्टमर का एनालिसिस करके प्रेफरेंस को समझ के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बदलाव लाना भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। आई वुड से आइडेंटिफाइंग द राइट कस्टमर, देन डेवलपिंग द प्रोडक्ट, देन प्रोक्योरिंग, एवरीथिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एंटायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसीलिए ये आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं बता रहे, ये बता रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में नॉर्मली क्या क्या चीजें आती है। सो दीज आर द ओवरऑल एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन कुछ अलग है, मतलब कुछ अलग है, पर अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। आई होप यू गेट इट। अरे समझा क्या भाई? तो पढ़ो ना फटाफट से, इसको जल्दी खत्म करो फटाफट से। दिस इज ऑल्सो डन। तुम लोग कभी कभी ऐसे बीकॉम जैसे क्वेश्चन पूछते हो ना, सर क्या ये सारे के सारे स्टेप सेम सीक्वेंस में लिखने हैं क्या? नहीं यार, एग्जाम में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ट्रस्ट में। तुमको जो टेस्टिंग करने का तरीका है ना, वो तो इतना बीकॉम लेवल है इस सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ पॉइंट मैच करेंगे, कितना मैच हो गया। रियल लाइफ में तूने सीक्वेंस में लिखना चाहिए यार, क्योंकि ये लॉजिकल तरीका है। हाँ, इनमें से एक आध चीज ऊपर नीचे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आउटसोर्सिंग कैन कम एनीवेयर, यू गेट माय पॉइंट। बट नॉर्मली बाकी सारी जो चीजें हैं वो सबके सब लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर है। तो एग्जाम में ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट हाँ तुमने लिखा तो अच्छा बात है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। कभी कभी मेरे को लगता है तुम में इतना जो डर होता है ना जिंदगी में, वो डर तुमको कितना स्टूपिड बना देता है ना। सॉरी, मतलब डोंट टेक इट ऑफेंसिवली, बट यू नो इट मेक्स यू लिटिल, यू नो, मतलब थोड़ा सा शांत कर देता तुमको दिमाग से, मेरे को लगता है कभी कभी। फियर इज गुड, बट टू मच फियर इज नॉट गुड। It happens with everyone. It can happen with me as well. I do agree, but you know what I mean, right? एक तो पता है क्या, ये सबसे बड़ा जिंदगी का प्रॉब्लम है, पता भी नहीं चल रहा है कि एक घटिया जोक मारने के बाद तुम लोग हंस भी रहे हो कि नहीं हंस रहे हो। मतलब कोई एक बच्चे ने हा 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 लिखा, पता चला वो ही चला नहीं हंस रहा, बाकी सब हंस रहे होंगे। समझ रहे हो मेरा बात? जिंदगी एक अलग ही कॉमेडी है। मतलब अगर आप चाहते हो बच्चा हंसे, तो उसके लिए भी तुमको बोलना पड़ता है हंसो। हे राम। We too miss live lectures. That's a different life altogether. Trust me. चलो जल्दी से पढ़ के इसको आगे पढ़ते हैं फिर। आई डोंट वांट टू कमेंट 30 सितंबर के बाद में शुरू होगा कि नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं मालूम यार, सच्ची में नहीं मालूम मेरे को। जिस दिन लगेगा सब ठीक है, कंफर्टेबल है, बच्चे आ सकते हैं, मैं आ जाएगा पढ़ाने के लिए। यू हैव नो क्लू, यू नो। हम लोग ऐसा बैडली चाहते हैं कि हम आकर के पढ़ाएं नॉर्मली, लाइक वी ऑल वांट दैट नॉर्मल डे। एनीवेज, एक बच्चे का डाउट था कि सर कॉन्करेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा, कॉन्करेंट ऑडिट जो वर्ड है ना, वो सबसे कॉमनली यूज होता है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बैंकिंग कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली एक एडिशनल ऑडिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट ऑडिट, जो सर इनडायरेक्टली कंटिन्यूस ऑडिट है। मतलब पूरे साल भर ऑडिट चलता रहता है। इट कैन बी ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस, इट कैन बी ऑन अ मंथली बेसिस। रादर कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर मोर देन 50%
of total transaction in terms of advances given, in terms of deposits received, जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनके मोर देन 50% ट्रांजेक्शन, टोटल ट्रांजेक्शन का मोर देन 50% टेस्टिंग करना पड़ता है कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है इन केस ऑफ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑडिट अभी भी पीरियोडिकली हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है, हाफ ईयरली बेसिस पे हो सकता है, ईयरली बेसिस पे हो सकता है। तो इंटरनल ऑडिट अभी भी अलग है, कॉन्करेंट ऑडिट को एक एडिशनल ऑडिट बनाया है बिकॉज ऑफ huge number of transactions in case of a banking company. That is the difference between concurrent and internal. If you really want to understand, you will understand this better, guys, when you actually read in detail about internal audit. Right now, we just discussed the basics of internal audit. Detail वाला part discuss ही नहीं हुआ है अभी तक. That comes at a final level. No बेटा, review के जैसा नहीं होता, review अलग होता है। अब review क्या है मतलब? Review is something different altogether. मतलब जो हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिव्यू करता है वो अलग होता है। तुमको आइडिया नहीं बेटा, तुम अलग ही खिचड़ी पका रहे हो, तुम कंफ्यूज मत हो अपने आप को। डोंट यूज दिस मच, यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज लिमिटेड रिव्यू। लिमिटेड रिव्यू मैंने तुमको पढ़ाया था एक बार ऑडिट के अंदर कि क्वार्टरली रिजल्ट जो होते हैं उनका नॉर्मली लिमिटेड रिव्यू परफॉर्म होता है, जहां सिर्फ इंक्वायरी होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर आता है, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं होता है। दैट इज लिमिटेड रिव्यू। सो रिव्यू जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर परफॉर्म करता है। ये कॉन्करेंट ऑडिट एकदम अलग है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर परफॉर्म नहीं करता है। ये नॉर्मली अलग से फर्म को हायर करते हैं जो सिर्फ डे टू डे ट्रांजैक्शन या ऑपरेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए परफॉर्म करते हैं। ये सब बताया मैंने ऑडिट के अंदर, सब कुछ पढ़ा है, 100% डाउट ही नहीं है। मैं सब डिस्कस ना करूं पॉसिबल ही नहीं है। जाने दो, लेट्स गो नेक्स्ट। हो गया हमारा आज का क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी। लेट्स गो टू प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। वो तो जोक अपने आप के अंदर। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है इन सिंपल टर्म्स, सही तरीके से, इट इज बेसिकली कवरिंग द ऑपरेशंस पार्ट, दैट इज ensuring हम बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी का फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं विद द लीस्ट पॉसिबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस। सो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी विल इंक्लूड सही तरीके से रॉ मटेरियल आपके ऑपरेशंस या प्लांट तक पहुंच रहे हैं, सही मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए फाइनल प्रोडक्ट अच्छे से बन रहा है, आपका ऑपरेटिंग कैपेसिटी अच्छे से आप यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, अगर अंडर यूटिलाइजेशन है उसका कैसे बेटर इस्तेमाल कर सकते हो वो आपने प्लान करना चाहिए। दिस ऑल कम्स अंडर प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। एक आध दिन को मार्क करके देखो, दिस स्ट्रेटजी अडॉप्टेड अफेक्ट्स द नेचर ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज। जो फाइनल प्रोडक्ट सर्विस है ना उसको इंपैक्ट करेगा, क्या मार्केट को सर्व करते हो उसको इंपैक्ट करेगा, और कैसे मार्केट को सर्व करते हो उसको इंपैक्ट करेगा, बिकॉज ये हमारा ऑपरेशंस वाला पार्ट है जिसके लिए हम अदर वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। देखो, this is concerned with our operating capacity, our location, our plant का layouts, प्रोडक्ट का सर्विस का डिजाइन क्या है, वर्क सिस्टम्स क्या है, कितना ऑटोमेशन है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर, एंड सर हमारा ओवरऑल वर्टिकल इंटीग्रेशन कैसा है। बिकॉज अगर हमारा वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होते जाएगा हमारा प्रोडक्शन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, बिकॉज रॉ मटेरियल में डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे हमारा कंट्रोल बढ़ते जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम चाहते हैं इनडायरेक्टली प्रोडक्शन स्ट्रेटजी भी मेरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने लिखा था तब सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट आया था। आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछोगे, प्रोडक्शन हो गया मेरा, लॉजिस्टिक हो गया, ये सब कुछ मेरे ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अगर अब मैं रिवाइज करूंगा इस सिलेबस को तो मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हेडिंग बनाऊंगा, उसके अंदर प्रोडक्शन आएगा, इन प्रोडक्शन स्लैश ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक अलग से आएगा, प्रोक्योरमेंट अलग से आएगा, आफ्टर सेल सर्विसेज अलग से आएगा, उसके अंदर सीआरएम आएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। तो होपफुली कभी ना कभी रिवाइज होगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट स्ट्रेटजी दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। वेरी डिफिकल्ट, कम टू पेज नंबर 124। वेरी वेरी डिफिकल्ट स्ट्रेटजी। इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन एक ही है, एक कंपनी का नेटवर्थ कैसे इवैल्यूएट करते हो, वहां तक आएंगे, वो क्यों करते हैं वो भी सुनेंगे। अभी के लिए बेसिक टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फ्रॉम एवरी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले एक बजट क्रिएट करना कि हमको कितना पैसा लग गया, कितना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज का एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रोक्योर मनी। सो बेसिकली द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग हाउ मच मनी वी नीड। नंबर 2 इज अक्वायरिंग दोज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। तो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है ना पूरा का पूरा, मतलब बजट वाला चैप्टर हो गया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गया, कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस हो गए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया। तो बेसिकली हमें कितना रिक्वायरमेंट है, कैसे हम उसको प्रोक्योर करने वाले, अक्वायर करने वाले फ्रॉम अलग अलग सोर्सेज से, फिर उनको हम कैसे डिप्लॉय करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, एंड हमारे पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे होगा, वो सब कुछ आपके फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में आता है। देखो, acquisition of funds, developing your budgets and projected financial statements, how do you manage or utilize those funds, and how do you evaluate the net worth of a business। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, आप सब अभिषेक सर के स्टूडेंट हो, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई डोंट थिंक आपको ये पढ़ने में तकलीफ आएगी। सीधा आगे आ जाओ।
acquiring funds from different sources. I'm sure you all know different sources of finance. You understand the relevance of debt equity mix, and sometimes now you understand after reading about Asian Paints that why sometimes debt not at all in a company can also be very, very good. So I'm talking about minimal debt can also be very good because the stress on a company is literally nothing. Projected financial statements, that is preparation of budgets. I'm sure उसको पूरा तुमने चैप्टर पढ़ा है, बस इसके अंदर एक चीज को मार्क करो. Come to page number 126. एक इंटरेस्टिंग चीज है, उसको मार्क करना. फाइनेंशियल बजट्स हैव सम लिमिटेशंस. ये आई एम श्योर तुमको पढ़ाया होगा एफएम के अंदर. फाइनेंशियल बजट के कुछ लिमिटेशंस होते हैं. बजट का लिमिटेशन नंबर 1 ये है कि कभी कभी लोग बजट को और गोल्स को इंटरचेंज कर लेते हैं. उनको लगता है बजट ही मेरे गोल्स है. ऐसा नहीं होता है. दोनों अनरियलिस्टिक चीज है. गोल्स हमेशा अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, एंड बजट हमेशा अलग होते हैं. तो देखो, फॉर एग्जांपल, समटाइम्स financial budgets can become a substitute for objectives. A budget is a tool, not an end in itself. Obviously, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है. Number 2, budgets बनाना एक overall इतना long term या cumbersome या expensive process हो सकता है. It may not be suitable for all the organizations, and some companies might invest a lot of resources in just preparing budget all the time rather than you actually using that budget. Sir, budgets can sometimes be used as a way to hide their inefficiencies. तो बहुत ही एकदम बेसिक सा अनरियलिस्टिक बजट बनाओ जो आप आसानी से अचीव कर सकते हो. तो सर इससे आपकी इनएफिशिएंसी छुप जाएगी. आपको लगेगा कि आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे हो इन कंपैरिजन टू योर एक्सपेक्टेशंस. और समटाइम्स इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट. बजट्स कैन बी यूज्ड टू एक्चुअली हाइड द क्रूअलनेस. मतलब अनरियलिस्टिक बजट्स बनाओ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट. जो लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, नहीं अचीव करेंगे, throw them out of an organization. That can be a very common way by removing people from the company. अगर आप उनको नहीं retain करना चाहते हो, तो budgets have these limitations, but that does not mean budgets are not relevant. They are definitely relevant, and at a bigger organization level, budgets के बिना एक company run नहीं हो सकता, because वरना उनको समझेगा ही नहीं where do they currently stand, how do they need to improve their position. For that, budgets and financial projections plays a very, very important role. यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स आप सबको मालूम है, सर अलग अलग पैसा किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा. वर्किंग कैपिटल के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एक्सपेंशन प्लान्स के लिए. दैट कैन बी योर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. कम टू द लास्ट पार्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इवैल्यूएटिंग द नेटवर्थ ऑफ अ बिजनेस. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, May 19 और November 19 में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑलरेडी पूछे जा चुका है इस चीज के ऊपर ही. How do you evaluate the net worth of a business? So question number 1, why do we need to evaluate the net worth of a business? एक बिजनेस का वैल्यूएशन करने का जरूरत ही क्या है? अगर आप मुझे पूछेंगे जो सबसे कॉमन मेरे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज थे, याद है क्या? एक्सपेंशन स्ट्रेटजी. इन एक्सपेंशन सबसे कॉमन तरीका क्या था यार? इंटेंसिफाई करो या डाइवर्सिफाई करो. सर डाइवर्सिफाई करने के लिए आप क्या करते थे? या तो किसी ने किसी कंपनी को एक्वायर करते थे या अपने किसी बिजनेस को बेचते थे इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी. तो सर acquisition of a company or merging the operations is a very common way out in a normal business world. इसीलिए एक बिजनेस का नेटवर्थ इवैल्यूएट करना एक सबसे कॉमन प्रोसेस और काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, कुछ मेथड्स दिए. ट्रस्ट में ये बिल्कुल बीकॉम लेवल मेथड्स है. कुछ एक दो चीजें लॉजिकल है इसमें, नॉट एवरीथिंग. इससे बहुत बेटर तरीके से आपको स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम एंड एससीए फाइनल लेवल में पढ़ाया जाएगा व्हेन इट कम्स टू बिजनेस वैल्यूएशन. यहाँ पर देखो पहला मेथड क्या बताया, नेटवर्थ मेथड. सिंपल है, आप अपना पेड अप शेयर कैपिटल प्लस योर रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस योर एडिशनल पेड अप शेयर कैपिटल जो आपने रेज किया होगा प्लस माइनस आपका गुडविल. गुडविल कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज पोजीशन. ये आपको आपका नेटवर्थ बना के दे देगा. बेसिकली सम ऑफ योर इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल, एडिशनल पेड इन कैपिटल जो आपने रेज किया है, रिटेन्ड अर्निंग्स और गुडविल का आप अमाउंट प्लस या माइनस कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द एग्जिस्टिंग कंपनीज पोजीशन. ये हो गया नेटवर्थ मेथड, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है. दूसरा, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स. इनका लॉजिक क्या था? नॉर्मली जब आप किसी बिजनेस को एक्वायर करते हो, आप उससे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, तो सर लास्ट 5 साल में एवरेज जो इस कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है उतना प्रॉफिट तो एटलीस्ट आप अगले आने वाले 5 साल तक अर्न करना चाहोगे. वो एक मिनिमम वैल्यूएशन हो सकता है एक बिजनेस का. तो मैंने 5 साल का थंब रूल लिया और क्या बोला, लास्ट 5 साल के एवरेज प्रॉफिट्स निकालो, उसको 5 साल से मल्टीप्लाई कर दो. इतना बेयर मिनिमम पैसा एटलीस्ट रिकवर करना चाहोगे किसी भी बिजनेस से, और ये पैसा आपको मिलना चाहिए. यही एक नॉर्मल वैल्यूएशन होता है. ये unrealistic, it doesn't work in all industries according to me. The second approach is measuring the value of a firm grows out of a belief that the worth of any business should be based largely on future benefits. देखो, a conservative rule of thumb is to establish a business worth as 5 times the firm's current annual profits. To calculate that, you can take a average of last 5 years. Now don't ask me the stupid question, so what if there is a loss in one of the 5 years and all? It will be taken as absolute terms to find the average. नेक्स्ट, मार्केट प्राइस मेथड. इसमें पहला मेथड मेरे को बहुत लॉजिकल लगता है पर उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है. पहला मेथड क्या बोलता है, एक काम करो, सिमिलर इंडस्ट्री में आपके जैसा ही काम करने वाला अगर सेम बिजनेस जो है
क्या वो बिका है क्या मार्केट में, अगर वो बिका तो उसका सेलिंग प्राइस क्या था। देखो फर्म का जो वर्थ है उसको बेस करो ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सिमिलर कंपनी, बट एक इंडस्ट्री में एग्जैक्टली सिमिलर कंपनी ढूंढना इन टर्म्स ऑफ ऑल साइड्स इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये थियोरेटिकली बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। लॉजिक है इसके अंदर, बट प्रॉब्लम ये है ये अप्लाई करना मुश्किल है। सेकंड अप्रोच जो बोलता है सर प्राइस अर्निंग बेस में, मतलब अपने पी रेशियो के बेसिस के ऊपर, तो सिंपल चीज है अपने पी को मल्टीप्लाई कर दो एवरेज नेट इनकम फॉर लास्ट 5 ईयर्स, उससे आपको एक ओवरऑल वैल्यूएशन मिल जाएगा। ये किसी हद तक मुझे अगर आप पूछोगे तो लॉजिकल लगता है, मुझे खराब नहीं लगता है। पी के बेसिस पे आप वैल्यूएशन जो करते हो, बिकॉज पी के अंदर आपका मार्केट प्राइस भी कंसिडर हो रहा है, जिससे आपको एग्जिस्टिंग फ्लक्चुएशन भी समझ में आते हैं। सबसे जो कॉमन तरीका है जो लेमैन जो यूज करता है, जिसके पास थोड़ा नॉलेज है टेक्निकल टर्म्स के अंदर, वो है आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड और मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। मतलब आपके नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, मल्टीप्लाई दैट विद द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। उसका पता चलेगा कि आज की तारीख में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का टोटल वैल्यू जो है वो आपके बिजनेस का वैल्यू हो सकता है। बट हाँ, इसमें भी प्रीमियम या डिस्काउंट आपको ऐड या माइनस करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा क्या वो शेयर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है या वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से आप प्लस या माइनस करोगे करंट मार्केट प्राइस के अंदर भी। नाउ इट्स सब्जेक्टिव आई वुड से, बट यस ये फिर भी थोड़ा एक लॉजिकल तरीका है। तो सर मार्केट प्राइस मेथड स्टिल एक बेटर तरीका है देन द फर्स्ट एंड सेकंड मेथड। रियल लाइफ में ट्रस्ट मी अबाउट दिस, हर बिजनेस का वैल्यूएशन अलग तरीके से होता है। आपको मालूम है, आई डोंट हैव टू कमेंट ऑन दिस, अगर आप टेस्ला के बिजनेस मॉडल को कंपेयर करोगे विद टोयोटा और विद एनी अदर सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल कंपनी, वैल्यूएशंस मैच नहीं होते हैं, बहुत अनरियलिस्टिक लगेगा आपको 100%। इसलिए बता रहा हूँ वैल्यूएशन एक अपने आप में बबल गेम है पूरा का पूरा, ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। कोई भी इंसान किसी भी तरीके से किसी भी चीज का वैल्यूएशन कर सकता है। इट्स ऑल ऑन assumptions and assumptions are going to vary from person to person, company to company, but that's how an industry works, because बिना assumptions के वरना कभी कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं और कोई कुछ बेचेगा ही नहीं। इसलिए assumptions होने बाय डिफॉल्ट जरूरी होते हैं। एंड स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन एकदम ही अलग होता है, इन सबसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसका तो अलग अलग लेवल, अलग अलग इंडस्ट्री, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कितना है, आरपू कितना है, मार्केट में प्रेजेंस कितना है, फ्यूचर में ओवरऑल इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है, बहुत सारी चीजों के बेसिस पे किया जाएगा। उसे कितनी पैसे की जरूरत है, बहुत सारी चीजें, बहुत डिफिकल्ट है कमेंट करना एक फैक्टर। जल्दी से बढ़ के आ जाओ फटाफट से बेटा। वी हैव टू कंटिन्यू विद द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, द लास्ट स्ट्रेटजी फ्रॉम दिस चैप्टर, बट द मोस्ट डिटेल्ड वन। Are you there? Okay, come to marketing strategy. If you ask me from exam point of view, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में 5 मार्क का क्वेश्चन आना काफी रेयर है। पहले फिर भी आता था, अभी काफी रेयर है, बिकॉज नाउअडेज देयर प्रेफरेंस इज मोर ऑफ एचआर स्ट्रेटेजी, देयर प्रेफरेंस इज मोर ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन पे आ सकता है क्वेश्चन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आ सकता है, यहाँ पर रेयरली 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। बट हाँ, यहाँ पर एमसीक्यू डेफिनेटली आता ही है। मैं आपको बता रहा हूँ 100% एक बच्चा हर टाइम आके बोलता है सर एक एमसीक्यू मेरे को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे जरूर देखने को मिला। तो मैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या आपको आनी चाहिए, सबसे पहले जो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के टेक्निक्स आपको दिए हुए हैं
उन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि सर यहाँ पर वो कोई भी केस स्टडी बना के दे देगा और बोलेगा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक टेक्निक हैज बीन यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो एग्जांपल्स ही आपको लॉजिकल लगेंगे, अगर समझ में आएंगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स उसने दिए हैं। पहला वाला है सोशल मार्केटिंग। मतलब सर जब आप ऐसा कोई पब्लिक कैंपेन यूज करते हो जहां पर आप कुछ यू कैन से सोशल वैल्यूज को, लाइक फॉर एग्जांपल, are you able to hear me guys? Just one second. Just one second. Are you able to hear me? They need to charge. So is this fine now? Great. So talking about social marketing, मतलब normally just give me 2 minutes, वो चार्ज हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, टॉकिंग अबाउट सोशल मार्केटिंग मतलब या तो हमारे कैंपेन्स के अंदर कोई ना कोई सोशल वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, एंड वी बिलीव कीपिंग देम एज अ बेस, you know, we will try to sell certain products or maybe sell certain ideologies. So for example, it refers to the design, implementation and control of programs which are seeking to increase acceptability of a particular social idea or a cause or a practice among a target group. For example, in this COVID-19 time, we are, you know, recommending people, I think if I'm not wrong, government ने आज वो जो रसोड़े में कौन था जो जोक चल रहा है, government has used that campaign to tell people that you have to still consume the food which is cooked in your own rasoda. Do you get my point? Basically, rather than still going out and consuming, you know, restaurant-based food, try to consume the food which is made in your rasoda. Do you get my point? I think उन्होंने उस funny meme को use किया एक सही social, you know, message आप तक ले जाने के लिए. I just read the headline. I did not read this in detail, but I think if I'm not wrong, that is something what government did, right? Am I correct? Raise your hand, useless fellows, if I'm right. Good, come back. So basically कोई ना कोई सोशल मैसेज या प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करवाना एक एसेंशियल पार्ट बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेयरिंग मास्क्स इन पब्लिक प्लेसेस राइट नाउ, इट हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल, you know, norm in the current situation till the time things are not really normal in the entire world. So according to me, that can be categorized as a social marketing. इन्होंने देखो एग्जांपल दिया है, you cannot smoke at public places. That can be one way. Next, yeah, Mukesh, Ramesh, Suresh जो भी है, augmented marketing. Talking about augmented marketing का मतलब होता है आप अपने प्रोडक्ट के साथ में कुछ ऐसे एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, वो सर्विसेज इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे दैट पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट विदाउट इवन थिंकिंग, बिकॉज द सर्विसेज आर द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट. सी, इट इज अ प्रोविजन ऑफ एडिशनल कस्टमर सर्विसेज और बेनिफिट्स व्हिच आर बिल्ट अराउंड द एंटायर प्रोडक्ट. एंड सर इससे ऑटोमेटिकली उन सर्विसेज की वजह से एक कस्टमर आपका, you know, ओवरऑल प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा. टाटा स्काई इसका एक क्लासिक एग्जांपल है. मेरे हिसाब से और भी बहुत सारी कंपनीज आपके सर्विसेज को बेचना चाहती है rather than selling the direct product, because they believe these additional services will convince the customer to stay with them rather than going to a competitor. That is called as augmented marketing. Next, direct marketing. That is nothing but marketing altogether. मतलब directly आप, you know, अपना याद है क्या, naptol.com हो गया, ईमेल के थ्रू हो गया, कैटलॉग सेलिंग हो गया, ये बेसिकली डायरेक्टली आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कस्टमर को बेचने का ट्राई कर रहे हो. बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टमर से इंटरैक्ट करके उसको प्रोडक्ट बेचने का ट्राई करते हैं. डायरेक्ट मार्केटिंग, दैट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग. ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना. एक एग्जांपल है एयरलाइंस का. लाइक फॉर एग्जांपल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन एयर एशिया, इन इंडिगो, नाउअडेज दे ऑलवेज हैव, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिगो में एक नॉर्मल प्राइसेस आपको कुछ आप एडिशनल 400-500 रुपए करोगे तो आपको फ्लेक्सी प्लस करके एक एडिशनल सर्विस देता है, जहां पर शायद आपको बोलता है आपको अपना बैगेज कंपैरेटिवली जल्दी मिलेगा इन कंपैरिजन टू अदर पीपल. यू विल गेट टू चूज अ राइट सीट फॉर योरसेल्फ व्हिच एवरीवन एल्स मे नॉट गेट in case they are buying a normal ticket. You get my point. Air Asia में भी same है. You can, you know, choose to sit on a place where you get a more leg space comparatively. So, you know, relationship marketing is somewhere connected to your service industry where they believe maintaining a good relationship with the customer is more important. If you want that customer to stay with you in longer run, that loyalty part will play an important part. So can you see, airlines offer certain special lounges at major airports or certain additional services for a very minor cost ताकि आप उस airline के साथ में stick करना चाहोगे. देखो, the process of creating, maintaining and enhancing strong value laden relationship with customers and other stakeholders. Basically, आप एक long term relationship build करना चाहते हो with the customer by designing a product or service in such a mechanism.
Service marketing, the most useless. I still don't understand what this concept is. ये बोलता है कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना, ये आर्गुमेंटेड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं बेसिकली. देखो, इट इज अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स, टूल्स, टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग टू सर्विसेज. तो सर्विस क्या होता है? इट इज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर एंड इज एसेंशियली इंटेंजिबल. बट देखो, इसमें बैंकिंग नहीं आएगा, रिटेलिंग नहीं आएगा, ये एग्जैक्टली याद कर लेना. एक ही बार गलती से एग्जाम में आया, एकदम यूजलेस है, मेरे को नहीं मालूम वो क्या बोलने का ट्राई कर रहा है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गलती से लिख दिया है, उसको डिलीट करना भूल गया, मेरे को ऐसा लगता है. स्टूपिड. नेक्स्ट, पर्सन मार्केटिंग. ये बिल्कुल लॉजिकल है. बेसिकली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स, प्रोफेशनल्स, they try to sell a particular product. So people are also marketed. People marketing consists of activities undertaken to create, maintain and change attitude or behavior towards particular people, or maybe those particular people are changing your attitude towards a particular product. I will count both of them in the person marketing. It's not just changing your attitude towards a person. I would say that will also be applicable in the reverse way towards the company and the product as well. Organization marketing. Here you're not selling, the one product of a company, you're selling the entire organization. For example, Babaji is selling the entire Patanjali. It consists of activities undertaken to create, maintain or change attitude and behavior of target audience towards an organization. Both profit or non-profit organization practice organization marketing. Directly वो पूरा का पूरा organization बेचना चाहते हैं, सीधा एक आध प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना चाहते. प्लेस मार्केटिंग, आपको सब मालूम रहेगा, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, आप कोई ना कोई टूरिज्म साइट्स को या इंडिविजुअल प्लेसेस को बेचना चाहते हो, दैट कैन बी योर प्लेस मार्केटिंग, जहां पर आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे फोकस करना चाहते हो. एनलाइटेड मार्केटिंग, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनलाइटेड मार्केटिंग का मतलब होता है पहले आप अपने कस्टमर को प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है वो समझाओ, उसके बाद में क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है वो समझाओ, एंड देन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस प्रोडक्ट कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ. दैट इज कॉल्ड एज एनलाइटेड मार्केटिंग. पहले आप पतले थे या आप बहुत मोटे थे, फिर आपने ऐसा किया, फिर आपके साथ ऐसा हो गया. That is enlightened marketing. Very stupid way to communicate, but yes, that's what it really means. Can you see a philosophy holding that a company's marketing should be supporting the best long-run performance of the marketing system? इसके 5 principles है. देखो, या तो आप पूरा customer oriented marketing, कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है उस पर फोकस करो, या कोई इनोवेटिव तरीके से मार्केटिंग करो जिससे आपको लगे कि भाई ये चीज कस्टमर साथ में लॉन्ग टर्म तक रहने वाली है. So adding some innovative aspects. या वैल्यूज, मतलब फोकसिंग ऑन व्हाट इज राइट, वो राइट क्या है उस पर डिस्कस करना. फॉर एग्जांपल स्टेइंग हेल्दी, कंज्यूमिंग हेल्दी प्रोडक्ट्स, तो आप हेल्थ को एज सही चीज को फोकस कर लोगे. सेंस ऑफ मिशन, मतलब आप इनडायरेक्टली प्रोडक्ट को बाद में बेचोगे, पहले लोगों को बोलोगे मेरा ये मिशन है, बाद में अपना प्रोडक्ट चिपका दोगे प्यार से. या सर सोसाइटल मार्केटिंग, दैट मींस सोसाइटी के नॉर्म्स को, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को देखते हुए उनको टारगेट करोगे, उसके बाद ध्यान से शांति से अपने प्रोडक्ट को चिपका दोगे. सो बेसिकली इनमें से कोई ना कोई तरीके से आप एक ब्रॉडर लेवल पे थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो. आई लाइक दिस टेक्निक. दिस इज गोइंग टू रिक्वायर लॉट ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग द रूट कॉजेस एंड देन सॉल्विंग. सो दिस इज गोइंग टू बी अ बेटर ऑप्शन. डिफरेंशियल मार्केटिंग, मतलब सर आप एक ही कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बेचता है. लाइक फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास में लाइफ बॉय भी है, लक्स भी है, रेक्सोना भी है, वो अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से बेचता है, उसको डिफरेंशियल मार्केटिंग बोल सकते हो. टारगेटिंग डिफरेंट टारगेट मार्केट्स इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर. सिंक्रोनाइज मार्केटिंग, मैंने आपको इसका एग्जांपल पहले भी दिया था. सिंक्रोनाइज मार्केटिंग का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, मतलब इन सिंपल टर्म्स हमको लगता है हमारे प्रोडक्ट का जो डिमांड है कुछ पीरियड में काफी अच्छा है बट बाकी पीरियड में बिल्कुल नहीं. मतलब इट कैन बी अ सीजनल डिमांड काइंड ऑफ सिचुएशन. आई वुड वांट ये डिमांड जो है बाकी पीरियड में भी बढ़ना शुरू हो जाए. सबसे सिंपल एग्जांपल है, अगर आप मुझे पूछोगे सिनेमा हॉल्स का, आज की तारीख में तो ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, बट इन जनरल सिनेमा हॉल्स के अंदर इफ यू से फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पास अच्छा रेवेन्यू आता है, बट मंडे टू थर्सडे कंपैरेटिवली कम रेवेन्यू आता है, तो आप मंडे टू थर्सडे के लिए प्राइसिंग कम कर सकते हो, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो, जिसकी वजह से आप सिंक्रोनाइज करोगे, ओवरऑल डिमांड बढ़े इन द रिमेनिंग पीरियड आल्सो. कैन यू सी when the demand for particular product is irregular due to a season or some parts of the day or some hours. So इसकी वजह से आइडल कैपेसिटी ले जाता है, तो आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हो जिससे उस आइडल कैपेसिटी को फुलफिल किया जाए. Concentrated marketing is nothing but focus marketing, focusing on specific target market और उसको ही प्रोडक्ट बेचना है आपको. Last, demarketing, I think it is important. Demarketing is not that आप चाहते हो नेगेटिव मार्केटिंग करना. Demarketing हाँ कुछ हद तक मतलब ये कि डिमांड अभी के लिए थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हो, बिकॉज शायद हो रहा होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका
क्या यार ये बस हमारा यूनिवर्सल स्टूडियोज क्या है रे पुणे का इमेजिका यूनिवर्सल स्टूडियोज से कंपेयर कर दिया, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, बट हाँ जो हमारा ऑल्दो आई डोंट लाइक यूनिवर्सल स्टूडियोज, आई टेल यू ऑनेस्टली आई डोंट लाइक इट, इट्स वेरी बच्चों के लिए लिटरली, मैं जाके वहां बोर हो गया था, मेरे को लगा लोग एक घंटा राइड के लिए वेट करते हैं, सम हैरी पॉटर राइड टू एंटर, द पीपल आर वेटिंग फॉर 1.5 hours, आई थॉट आई विल फिनिश वन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट लेक्चर इन द मीन टाइम, so it's a little stupid waiting for a particular ride for 1 or 2 hours. I don't like that specifically, so I prefer sitting in a restaurant out there and eating food. Anyways, come back to the marketing. So Imagica ने क्या किया? They realize that during the weekends the demand is extreme and they are unable to fulfill the entire demand during the weekend. So उन्होंने क्या किया? क्यों ना काम किया जाए? वीकेंड्स के लिए डिमांड को रिड्यूस किया जाए, तो उन्होंने इनडायरेक्टली इस तरीके से प्रमोशन किया that during weekends there is a heavy rush. तो why not go on a Tuesday, Wednesday or Thursday, some alternate day जहाँ पे डिमांड कम रहता है comparatively. तो उन्होंने अपने heavy rush डिमांड को शिफ्ट कर दिया other days के लिए, जिससे उसको बेटर तरीके से डील कर सकते हैं. That can be a way of demarketing. That means you reduce the demand temporarily for a particular area or a time period जब आप उसको डील नहीं कर सकते हो, या आप उसको शिफ्ट कर दो towards a time period जहाँ पर आपको लगता है आप उसको डील कर पाओगे बेटर तरीके से. That is called as demarketing. बसेस का एग्जांपल दिया है उन्होंने, ये सेम चीज लोकल ट्रेन्स के लिए एप्लीकेबल होता है, मेट्रोस के लिए एप्लीकेबल हो सकता है अगर मेट्रोस आई तो अकॉर्डिंग टू दैट. एनीवेज, डू यू अंडरस्टैंड दीस डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स? From exam point of view, I'll tell you which are the important ones. Augmented marketing, important. Relationship marketing, important. Enlightened marketing, important. Demarketing, important. You should be prepared. इस पे एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है. ऐसी चीजों को डिस्काउंट मत किया करो. यही वो एमसीक्यूज होते हैं जो आपको फिर डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आपको लगता है ये तो मेरे को पढ़ा ही नहीं मैंने, इसलिए चुपचाप पढ़ लिया करो, ऐसी चीजों को छोड़ मत दिया करो. Do you understand? Yes or no? चलो एक लास्ट चीज आज के लिए, मार्केटिंग मिक्स. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर एक अच्छा 4 मार्क या 5 मार्क क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू भी आ सकता है. नाउ मार्केटिंग मिक्स इज बेसिकली 4 P's. मतलब अगर आप एक सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो तो आपको इन 4 P's पे फोकस करना पड़ेगा. आई वुड से इनका भी एक्सपेंशन आ चुका है जो हम डिस्कस करेंगे. इन 4 P's में भी 3 एडिशनल P's को ऐड कर दिया है. मतलब ये एटलीस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे P's है जो आपको समझने पड़ेंगे, तभी आप एक सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना पाओगे. नंबर 1 इज प्रोडक्ट. आपको मार्केटिंग करने से पहले पता होना चाहिए भाई मेरे को बेचना क्या है. व्हाट प्रोडक्ट और व्हाट सर्विस डू यू हैव टू सेल. बिफोर यू स्टार्ट येलिंग, अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू येल और हाउ यू नीड टू येल. डू यू गेट माय पॉइंट? Is it basically the quality what I am selling? Is it basically the quality of service that I am selling? Or is it the pricing what I am selling? So what exactly you are selling about the product? You need to know that. So strategies are needed for managing existing product, adding new ones, dropping failed products, branding, packaging, warranties. So basically आपको product क्या है वो समझना बहुत जरूरी है. दूसरा चीज प्राइसिंग. प्राइस मेरे सबसे इनडायरेक्टली वो एक वैल्यू करने का तरीका है जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर से इनडायरेक्टली मिलता है. मतलब बेसिकली इन टर्म्स ऑफ money, what do you get to provide this utility of this particular product or service to your customer? So yes, you need to understand before marketing कि भाई मेरा प्राइस सबसे ज्यादा है कि सबसे कम है या एवरेज है. मतलब सबसे कम है तो शायद मुझे प्राइसिंग को एज अ मंत्र रखना पड़ेगा व्हाइल सेलिंग माय प्रोडक्ट. सबसे प्रीमियम है तो शायद इनडायरेक्टली प्राइस के बारे में बात कम करना है, बट इनडायरेक्टली बाकी चीजों के बारे में बात करना है कि लोग समझे कि ये प्राइसिंग प्रीमियम रहने वाला है कंपैरेटिवली. या सर अगर एवरेज प्राइसिंग है तो आपको ये बेचना पड़ेगा दैट यू आर गेटिंग द मोस्ट वैल्यू आउट ऑफ एवरीवन एल्स इन कंपैरिजन टू अदर पीपल. बेसिकली बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी रहेगा. तो प्राइसिंग का मतलब है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स हैज टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट. आपने लिटरली इतना लाइन में लिखा ना, इतना हमारा तब भी काम हो जाता है. मतलब प्रोडक्ट के बारे में लिखा, प्राइस के बारे में एक लाइन लिखा, यही एक्सपेक्टेशन है. हाँ, यहाँ पर नोट जो उसको मार्क करना, ये मेरे सबसे कभी ना कभी जरूर पूछेगा, आज तक नहीं पूछा है. फॉर अ न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक नया प्रोडक्ट को प्राइस करते वक्त आपने क्या क्या चीज दिमाग में रखनी चाहिए. ऑब्वियसली कोई भी नए प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने से पहले मेरे को समझना चाहिए क्या ये प्राइस पे मार्केट में लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे. सो विल पीपल एक्सेप्ट दिस प्रोडक्ट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. एंड सुनो मेरा बात,
एटलीस्ट बेयर मिनिमम तुम्हारा कॉस्ट और कुछ तो मार्जिन मिलना चाहिए तुमको। अगर तुमने स्टार्टिंग से ही उसको बहुत, इट इज सब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल तुम बात करोगे, तुम लड़ाई करोगे, जियो तो फ्री में दिया था सर, तो मे बी उसका बहुत लॉन्ग टर्म प्लान था, may not be suitable for all products, but normally in conventional businesses you should at least try to bare minimum cover your cost and have some margin, ताकि आप उसको यूज करके फ्यूचर में एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हो। तो देखो, प्रोड्यूसिंग एटलीस्ट अ रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट। एंड सर प्राइसिंग इस तरीके से करो कि आपका जो बिगर मार्केट शेयर है वो क्या चाहता है, क्या बिगर मार्केट शेयर आप क्रिएट करना चाहते हो बाय सेलिंग इट एट अ लोअर कॉस्ट और बाय सेलिंग इट एट अ प्रीमियम प्राइस, एग्जैक्टली वो क्या चाहता है। केटरिंग टू अ मार्केट दैट हेल्प्स यू डेवलपिंग अ मार्केट शेयर इज एन इंपॉर्टेंट अप्रोच। दैट वे you will be able to decide how to price a particular product. This is not an easy job. This requires a lot of experience. If you fail here, you technically become successful or unsuccessful by making these right choices. Place. इनडायरेक्टली प्लेस वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप मुझे पूछोगे, जिसके थ्रू एक कस्टमर और एक मैन्युफैक्चरर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, या जहां पर एक्चुअली में इनडायरेक्टली प्रोडक्ट एक्सचेंज होता है या सर्विस एक्सचेंज होता है। देखो ध्यान से सर, दी स्टैंड्स फॉर दोज एक्टिविटीज दैट मेक्स द प्रोडक्ट अवेलेबल टू अ टारगेट कंज्यूमर। इट कैन बी अ मार्केटिंग चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और एनीथिंग व्हिच enables you or helps you to actually deliver a product to the customer or provide a service to the customer. That is called as place. इस place से related physical evidence करके एक नया P आएगा जो आगे पढ़ने वाले हैं। प्रमोशन इज बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट योरसेल्फ, कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बेटर चीजें बताओगे। इसके अंदर आपका डायरेक्ट सेलिंग आता है, पर्सनल सेलिंग, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना, नॉट वेरी यूजफुल टुडे। एडवर्टाइजिंग मतलब टीवी के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू, आप सब प्रेस्टीज पढ़ा है, आप सबको मालूम है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। पब्लिसिटी इनके हिसाब से ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, पब्लिसिटी इनके हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पर आप सबको मालूम है पब्लिसिटी इज नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, you know, but it is literally very expensive in today's world. Next, sales promotion मतलब discounts, vouchers, एक पे एक फ्री, दो पे चार फ्री, blah blah blah, that is nothing but your sales promotion. ठीक है, ये बोलता है expanded marketing mix, मतलब उन 4 P के अलावा भी नए 3 P है। People, अब बात समझ में आया that everyone, I'm talking about एक कस्टमर से बात करने वाला सेल्स वाला बंदा, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला बंदा, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बंदा, आफ्टर सेल सर्विस का प्रोवाइड करने वाला बंदा, एवरीवन हु एक्चुअली हेल्प्स यू इन दिस एंटायर प्रोडक्ट का प्रोसेस या सेलिंग का प्रोसेस या ओवरऑल प्रोडक्ट का कस्टमर एक्सपीरियंस, उस सबके सब लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी समझना बहुत जरूरी है, उनका एक्सपर्टीज क्या है, उसके बेसिस पे आपने स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। सो बेसिकली ऑल ह्यूमन एक्टर्स who play a part in delivery of the market offering and thus influence the buyer's perception, they will be part of people. Physical evidence is somewhere similar to place. Basically ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इनडायरेक्टली जो एक एविडेंस बनता है कि कहां पर आके कस्टमर ने इंटरैक्ट किया है मैन्युफैक्चरर से। इट कैन बी ई प्लेटफॉर्म्स, इट कैन बी बिग होलसेल मार्केट्स, इट कैन बी स्मॉल शॉप्स आल्सो। दैट्स व्हाई फिजिकल एविडेंस, दैट इज द एनवायरनमेंट इन व्हिच मार्केट ऑफरिंग इज डिलीवर्ड, जहां पर एक्चुअली में ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है और कस्टमर तक प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचता है। Processes, everything around you, purchase process, sales process, marketing process, CRM, all the processes which helps you in delivering the right product or service to the customer, वो सब कुछ आपके प्रोसेस में कवर होता है। ये सारी ही चीजें मिलकर के आपको सही में हेल्प करेगा सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बनाने के अंदर। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स था जहां पर 4 पीस आते हैं, ठीक है, उनका एक्सटेंशन में 3 पीस को ऐड कर दिया है। इसी तरीके से एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, जैसे एक बायर के पर्सपेक्टिव से normally, sorry, from a company point of view, when you have 4 P's, from a buyer or a customer point of view, these 4 P's can be 4 C's. For example, product क्या है मेरे कस्टमर के लिए, एक सोल्यूशन है कोई प्रॉब्लम का, प्राइस क्या है उसके लिए, एक कॉस्ट है, प्लेस क्या है, एक कन्वीनियंस है, कैसे उसको प्रोडक्ट या सर्विस मिलने वाला है, प्रमोशन क्या है, एक तरीके का कम्युनिकेशन है कि उसने क्यों खरीदना चाहिए। तो ये 4 पीस को 4 सीज में कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम अ बायर और अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। वो जो 4 पीस थे वो एक कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन के पर्सपेक्टिव से था, ये अपने कस्टमर के पर्सपेक्टिव से है। 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी टेक्निक्स है और मार्केटिंग मिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। बाकी कुछ चीजें हैं जिसको हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दिस, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक अच्छा 4 मार्क क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटजी टेक्निक्स। क्या आपको समझ में आया ये चीज? Let me show you what questions they have asked in the examination. November 19. See, discuss the various approaches of evaluating the net worth of a business. Simple 3 answer. Straightforward. I told you these questions are very common. ये already पूछा जा चुका है। May 19 में क्या पूछा गया बोलता हूँ आपको, बेंचमार्किंग, आवर ग्लास स्ट्रक्चर, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, तो आगे आएगा।
डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं अपन। हाँ ये देखो, लीडरशिप रोल ऑफ अ मैनेजर, नहीं ये भी आगे आएगा। हाँ, प्रोमिनेंट एरियाज वेयर एचआर मैनेजर प्लेज द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोल। देखो, पर्पसफुल डायरेक्शन, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में हेल्प करेगा, फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये दोनों पूछे जा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू मी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन these two. Are we good guys? कल थोड़ा सा और पढ़ेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी रिलेटेड कि कैसे मार्केटिंग प्लानिंग किया जाता है। विल डिस्कस दैट मच इन लिटिल डिटेल एंड probably talk some basics about functional strategies, and then we'll move towards the next chapter. Are we good? Thank you guys. Thank you. Have a good night. Bye bye.